developments after BJP's victory in the recently held Delhi Assembly elections with a thumping majority on 48 Assembly constituencies after a long gap of 27 years. Final decision on who will be the Chief Minister is expected soon, with reports suggesting that the swearing-in ceremony could take place in just a few days, as 18 or 19 February is what we are given to understand, as party leadership is evaluating all the choices. BJP leaders Ashish Sood and Rekha Gupta are among the top contenders for the Delhi CM post, given the formula for also appointing a woman chief minister if to be considered. However, no official statements have been made, even while questions have been asked to all the MLAs who have secured win in their own constituencies. The Bharatiya Janata Party may be considering appointing 2 deputy chief ministers in the national capital, following similar strategies to the national capital as the other BJP ruled states like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. The potential deputy chief ministers could represent the key communities, including the Punjabis, Sikh, Purvanchalis, Uttarakhandis, Vaishyas, Jats, who have played a crucial role in making the party win during these elections. But the suspense continues over Delhi's new chief ministerial pick following BJP's election victory. Several leaders have visited the residence of JP Nadda, and speculation suggests a woman or a Purvanchali candidate could be the top priority. PM Modi's return from abroad will likely also determine the date of the assignment. All right, now, in fact, joining me live on the broadcast is BJP newly elected MLA from Mustafabad, Mohan Singh Bhisht. Very, very congratulations on your victory from the constituency where in fact 40% Muslim population is there, and BJP's thumping victory in all the 48 assembly constituencies. First up, I want to understand from you, why has Delhi voted for change at this point of time, specifically giving the mandate to keep the Aam Aadmi Party out of the power in the national capital? ना, निश्चित रूप से 10 वर्षों के अंदर केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जो ये दुर्दशा कर दी थी, तो दिल्ली के लोगों को लगा कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की नीतियों के आधार पर यहाँ काम होना है। निश्चित रूप से लोग चाहते हैं यदि एक ही दल की सरकार बनती है तो काम करने में दिक्कत नहीं। जी मिस्टर भिष्ट, जिस तरीके से देखा जाता है ये जो पूरा इलेक्शन है ये इन मुद्दों पे चला है कि अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, डोमेस्टिक इश्यूज, जो सिविक इश्यूज हैं उनको लेकर बीजेपी ने भारी बहुमत में जो विन है वो हासिल की है। पर आगे के प्लान का क्या, बीजेपी किस तरीके से इन पूरे मुद्दों को और जो चैलेंजेस आने वाले हैं इनको किस तरीके से फेस करेगी? निश्चित रूप से यमुना का मुद्दा हमारे लिए कोई साधारण मुद्दा नहीं है। यमुना की हालत किस प्रकार से बदतर इस सरकार ने कर दी। जिस सरकार को 10-12 साल का समय काम करने का मिल जाए, वो झूठ बोलने के सिवा बाकी कोई काम नहीं करता था। इस यमुना के गंदे पानी को ठीक करने के लिए, यमुना में गंदा पानी ना जाए, फैक्ट्रियों का पानी ना जाए, उसके लिए ईटीपी प्लांट्स वगैरह की इस प्रकार की व्यवस्था करनी थी। एक चैनल टाइप में उनको एक नहर टाइप में बनाना था, उसमें ईटीपी प्लांट बना करके उस पानी को डाइवर्ट करके यमुना में डालना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और शायद मेरे को तो लगता है यमुना मैया ने उनको ही अभिशाप दे दिया है, और जिसका फलस्वरूप दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। और केंद्र सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए का बजट इस यमुना के लिए दिया था, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। बिष्ट जी, जिस तरीके से चुनाव चला था, बहुत बड़े वादे भी बीजेपी ने जब किए थे और उन वादों का अब साक्षात होना आगे एक्सपेक्टेड है, पर ऐसी जो योजनाएं हैं सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, आवास योजना हो या आयुष्मान भारत हो, इन योजनाओं पे पूरी गारंटी दी थी, तो कब तक देख सकते हैं दिल्ली वासी की योजनाएं दिल्ली में भी दिल्ली वासियों के बेनिफिट के लिए भी लागू होगी?
ना निश्चित रूप से कैबिनेट की जिस प्रकार की हमारी मीटिंग होगी, पहला हमारा लक्ष्य होगा दिल्ली के अंतर्गत स्वास्थ्य योजना के बीमा के नाम से जो हमारी मदद गरीब आदमियों के लिए हमसे हो सकती है उसको हम लागू कराएंगे। अब इस बार वो 5 लाख नहीं, हम 10 लाख रुपया इसको करेंगे, जिससे गरीब को लगेगा कि वास्तव में ये हमारी सरकार है, मोदी की सरकार है। ये बेशटी, जिस तरीके से मुस्तफ़ाबाद में आपको भारी बहुमत से वोट मिला है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, 2020 में भी वहाँ पे राइट्स हुए थे और राइट्स में करीबन 60 लोगों की जान गई थी। मुस्तफ़ाबाद के लोगों की अब विश्वास तो जीता है आपने, पर आगे उनको देने वाली प्रायोरिटीज़ क्या हैं? जो रोड मैप होने वाला है वो कहाँ से शुरू होगा और क्या देखने वाले हैं हम? ना निश्चित रूप से मेरी विधानसभा में मुस्तफ़ाबाद से जीत के आया हूँ और जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पीने का पानी 1998 से लेकर के 2008 तक आता था, वो पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लोगों को जानबूझ करके रैनी ट्यूबवेल और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उसमें सबसे पहले इस एरिया के अंदर जो मैंने 1998 में भगीरथी जो ट्रीटमेंट प्लांट था, जहाँ 80 MGD पानी ट्रीट होता था, उसको 120 तक ले गया, लेकिन करावल नगर की जनता को पीने का पानी नहीं दिया गया, शुद्ध गंगा जल नहीं दिया गया। ये गंगा जल दोबारा से हम पूरे क्षेत्र के अंदर मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में देंगे और मुस्तफ़ाबाद ही नहीं, हम दिल्ली को भी पूरी तरह से गंगा जल देंगे, जिससे लगेगा दिल्ली के लोगों को कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये काम हुआ है। अभी इसमें भी हमारी एक योजना है 2015 से लेके 17 तक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से एक करार होना था, जिसमें कि 100 MGD पानी उत्तर प्रदेश ने हमको दिल्ली को देना था और हमारे द्वारा ये जितने भी गंदे नालों का पानी है वहाँ के खेत और खलियान में जाना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100 MGD पानी हम निश्चित रूप से उस पानी को लेके आएंगे, दिल्ली के लोगों का प्यास बुझाने का काम करेंगे। गंग नहर जैसा एक नहर हम दोबारा से दिल्ली में ला करके इस पानी को देंगे। जी बिल्कुल मिस्टर भिष्ट, जिस तरीके से आपने जीता है मुस्तफ़ाबाद, आपने बहुत एक चर्चित बयान भी दिया था जिसमें मुस्तफ़ाबाद का नाम चेंज करने के लिए शिव विहार और शिवपुरी के लिए, बट जो ऑपोजिशन है उसका ये कहना है कि ये सब नाम चेंज करना और ये सब प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, नाम चेंज करने के पीछे से कोई विकास नहीं हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? आक्रमण करना ना करना ये तो उनका काम है, लेकिन एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। मान लिया ये नाम तय करना मैं नहीं तय करता, करेंगे तो चुनाव आयोग करेगा ना। मेरा तो सुझाव देना है कि इस काम को ये किया जाए, ये मेरा सुझाव होगा, लेकिन मैं नाम पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन यदि 58% का रेशो वाले लोग बोलें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो उसका समर्थन करना ही पड़ेगा। और मेरा नाम से ज़्यादा एरिया के डेवलपमेंट से है। मैं एरिया का डेवलपमेंट करूँगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बराबर काम मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इस समय जब सबसे पहले जो सवाल उठ रहा है, जो रिजल्ट्स के बाद ये एक बार देखा गया है कि कांग्रेस का जो टैली है वो दिल्ली में शून्य पे ही रहा है। शीला दीक्षित जी के टाइम से अब देखा जाए तो कांग्रेस का जो खाता है वो दिल्ली में न खुल पाया, और इस समय भी उनके जो प्रयास थे वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के वोट कटने तक ही रह गए हैं। तो क्या लगता है इसके पीछे कांग्रेस की किस तरीके से लड़ाई रही? उनके हिसाब से कांग्रेस ने बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़े हैं। ना निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने सोचना पड़ेगा, नीचे जमीन को देखना पड़ेगा, और काम करने के लिए उनको हवा हवाई नहीं नीचे उतर करके करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको क्या सुझाव दे सकता हूँ। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल भी ये है भिष्ट जी, जिस तरीके से नाम की चर्चा चल रही है कि चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे किसके चेहरे को देखा जा सकता है,
उन 48 एमएलएस के बीच में कौन ऐसा नाम है जो उठ के आएगा? आपके हिसाब से जो फॉर्मूला है वो किस बेसिस पे हो सकता है, अगर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? नहीं, ये तो पार्टी को तय करना है, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। और मैं आपको बड़े नम्रता और विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी बनेगा वो कमल का फूल वाला ही बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज इन फैक्ट मुस्तफाबाद एमएलए मोहन सिंह भिष्ट, who has been in fact chosen to win in the assembly constituency, which was controversial as well, and also got a good vote share at this point of time. Now on that note, in fact, there are